Hello friends, welcome to September batch weekly meeting. Usually all participants are ready now, so we will start. Yes, Chintan. So ready? Hello and welcome everyone. And today we are going to discuss our portfolio. Right? So during this week, we have created a simple table where we have already noted down what is my annual income, what is my approximately expenses, which I am going to see this year. For example, here is the example of Chirag Bhai, right? Maybe I am not sure, but Chirag Bhai may have written here that he is having his monthly income of 70,000 and his cost is annual household debt installment around 40,000, right? So the remaining money he might be investing into creation of some assets. Might be he would be creating his physical properties, might be he is interested in some debt instrument and some portion would be going into equity. So before we start anything, we should know hum kahan pe hai abhi. Where are we right now? Here I can see Lalit Bhai's spreadsheet. He has written there is salary 50,000, right? Good, clear data I can see here. So total income 8,35,000. He has even written his annual expenses. He has written his total assets which he have created, right? So from which income these assets have been created? Might be Lalit Bhai is earning since a long time and his savings have helped him create this asset, right? He have written around he is having 65 lakh assets, some in metal, some in rental properties and some in fixed securities. So wonderful, right? He is having some liabilities of around 15 lakh. So now I know what are my assets, what are my liabilities, and I also know that what is my net income so that I can plan how much I will save, right? So wonderful, Lalit Bhai. ललित भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? Let me check. Yes, Lalit Soria, Lalit Bhai from Jamnagar. If you can unmute yourself, please. Let me ask you some important questions. I think Lalit Bhai is not able to unmute himself. Okay. Chirag Bhai, yes. If you can. हाँ सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. कैसे हो? फाइन सर, बढ़िया बढ़िया. ओके. तो एक्सरसाइज कैसा चल रहा है अभी? अरे सर मस्त चल रहा है, मस्त बढ़िया चल रहा है ना. चलो वंडरफुल. ओके. तो ये जो डेटा है, ये डेटा तो समझ में आ गया ना कि मेरे को सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. मेरे एक्सपेंस, मेरी लायबिलिटीज बराबर है. सर आपका आवाज थोड़ा कट के आ रहा है. क्लियर? ऐसा हो तो आपका कैमरा बंद कर दीजिए, नेट थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे. गोल क्या रहना चाहिए चिराग? मेरी लायबिलिटीज को मैं बढ़ाता जाऊं कि मेरे एसेट्स बढ़ाता जाऊं? सर एसेट बढ़ाते जाएंगे और लायबिलिटीज कम करते जाएंगे. एसेट बढ़ाते जाएंगे सर. एसेट्स बढ़ाते जाएंगे, लायबिलिटीज कम करते जाएंगे. राइट. तो एसेट बढ़ाने का क्या तरीका है हमारे पास? रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं सर, और उसके बाद एफडी वगैरह भी कर सकते हैं, उसके साथ इक्विटी में भी डाल सकते हैं. राइट. तो हम हमारे प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा करके हमारा एसेट को ऐसा डाइवर्सिफिकेशन दे
कि ये जो अलग अलग जो ब्लॉक्स है, यहाँ से पैसा हर साल मेरी बैंक में क्रेडिट होता जाए, मैं मेरे बैंक में से डेबिट होने वाली चीजों को धीमे धीमे कम कर दूं और मैं मेरी बैंक में क्रेडिट होने वाली चीजों को बढ़ाता जाऊं, जिससे कि ये कुछ ऐसी एसेट्स बने कि कल मैं रिटायर भी हो जाऊं, अर्ली रिटायरमेंट ले लूं, पर मेरे बैंक में ये क्रेडिट होता जाएगा। तो आज जो मेरी जो इनकम है, ये एग्जिस्टिंग इनकम जब मैं काम कर रहा हूं तब आ रही है। ये इनकम पाने के लिए मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। कल अगर मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट ना भी करूं, लेट मी रिपीट, कल मैं अगर मेरा समय इन्वेस्ट ना भी करूं तो भी देन ऑल्सो आई शुड गेट दिस इनकम। दिस इज द मैजिक ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स कोई ट्रेडिंग का तरीका नहीं है। एसेट्स क्रिएशन मीन्स वी आर क्रिएटिंग सम एसेट्स विच आर गोइंग टू गिव मी लाइफ लॉन्ग अर्निंग, right? So these are my assets. Now let me move next. यहाँ पे मैं चिराग भाई आपके डेटा जब मैं स्टडी कर रहा था, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आपने क्या लिखा हुआ है, मतलब 3 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन? नहीं सर, ये एक्चुअली मेरा डेटा नहीं है। वो मैंने क्या किया था, जो पहली सीट थी शायद अरुण भाई की थी या आपकी टेस्ट वाली थी, उसको कॉपी पेस्ट किया था। और मतलब वो ग्रोविंग इकोनॉमिक्स वाला ये सिर्फ फॉर्मेट है, वो कॉपी पेस्ट किया था। राइट। यहाँ पर मेरा थोड़ा ऊपर एसेट वाला डेटा डाला, इनकम वगैरह वाला, और नीचे से ग्रोइंग इंडस्ट्रीज और कंपनीज वाला डेटा डाला। बराबर बराबर है, नो प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया एकदम। हम तो जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें सबसे बढ़िया इंडिया ही लग रहा है सर अभी। राइट। तो यहाँ पे मैं 2020 यानी ये साल इंडिया का ग्रोथ क्या रहेगा? अभी तो खत्म हो गया, देखो 2020, हम तो 2021 में आ गए 2021 में, पर 2020 कैसा रहा इंडिया का? वो सर इतना ठीक नहीं रहा, क्योंकि माइनस गया होगा 5% के आसपास सर। -10% लिख दो। ठीक है राइट। -10%, -8%, अभी ये सब एस्टिमेट है। राइट। देखते हैं एग्जैक्ट कब डेटा आता है, 2 महीने में आ जाएगा। तो ये हमारा एस्टिमेट लास्ट ईयर का था। पिछला साल दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं था, इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं था। राइट। अब यहाँ पे इंडिया को क्यों अंडर परफॉर्मिंग बताया गया पिछले साल, कि वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का डी ग्रोथ ज्यादा हो गया, ऐसा क्यों? उसका -5% है वर्ल्ड का, और हमारा 8% हो गया इसलिए। हाँ, तो मतलब क्यों, लेकिन ऐसा क्यों कि हमको माइनस में डाल दिया ज्यादा? क्योंकि हमसे उम्मीदें भी सर ज्यादा थी, क्योंकि हम पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, तो इतना फॉल नहीं आना चाहिए, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए हम। अच्छा, नहीं, लेकिन वो बात अलग हो गई। ये तो एस्टिमेट ही ऐसा हो गया कि इंडिया ज्यादा गिरेगा 2020 में, जीडीपी भी ज्यादा टूटेगा, ऐसा एस्टिमेट है ये। देखो, ये एस्टिमेट 3 कारणों से है। पहला कारण, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर है? इंडिया में। राइट। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज की अपेक्षा थी, बराबर कि नहीं? तो इंडिया को संभालने के लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा था। अभी बढ़िया से संभाल लिया, लेकिन एस्टिमेट ऐसे थे कि इंडिया में कैजुअलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। तो ये भी तो सोच सकते हैं कि दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राइट। तो एस्टिमेट इंडिया के बुरे थे कि हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इंडिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे जितने डेवलप कंट्री के पास होते हैं। आज ये बात तो है ही ना कि दूसरी जो कंट्रीज है, जिसको यूएस यूरोप हम बोले, तो उनके पास पैसा तो है ही हमसे ज्यादा। वो सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उनके पास पैसा था प्रॉब्लम से निपटने का। और जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, लिटरेसी भी थी सर उनके पास, वो तो भी डेवलप्ड हो रही है, तो उनके पास रिजर्व में पैसा कम रहता है। जैसा आप लोग सेक्टर में देखते हो, हम लोग ग्रोइंग कंपनी है, तो रिजर्व में तो कम पैसा रहेगा।
तो बहुत सी चीजें थी जिससे हमारा अनुमान बहुत कम रखा गया। अब असल डेटा जब आता है 2020 का तब हम देखेंगे, राइट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 2021 में चिराग भाई अचानक 2 दिन पहले IMF आता है और बोलता है अरे छोड़ो छोड़ो हमारा सब पुराना डेटा भूल जाओ, अभी इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाला है 10% 11%, क्योंकि ये सब रिज्यूम हो गया सर। 11%। सब इंडस्ट्री वगैरह रिज्यूम हो गया सर, और ये वैक्सीन वगैरह भी आ गई, तो उस हिसाब से वो पुराना देखो वाला बिल्कुल सही बात है चिराग भाई आपकी। तो IMF ने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने जो प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था, इंडिया 2021 में दुनिया को अंडर परफॉर्म करेगा। हमारा ग्रोथ इन्होंने खाली 6.5% प्रेडिक्ट किया हुआ। राइट, इंडिया का ग्रोथ इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अचानक IMF आई और बोली कि 11.5%। जब पूछा गया कि आपने इतने बुलिश क्यों हो गए इंडिया पे, तो उन्होंने 3 कारण बताए। कारण नंबर 1, लॉकडाउन जैसे ही खुला धंधा चालू हो गया। राइट, हमको तो पता ही है कि हमें घर में घुसाने के लिए भी डंडे दिखाने पड़ रहे थे, तो हमको तो बाहर ही निकलना था। बराबर की नहीं? बढ़िया बढ़िया। तो डेटा ने क्या कहा कि जैसे लॉकडाउन खुला वैसे ही इकोनॉमी चलनी चालू हो गई। तो पहली चीज थी धंधे खुले, दूसरी वैक्सीनेशन आ गया, और वो भी हमने 150 कंट्रीज को देने का प्रॉमिस किया। 150 कंट्रीज, पहले 12 दिन में मेरे ख्याल से 20 लाख वैक्सीनेशन हो गए। तो ये तो सब जबरदस्त उपलब्धि है। तो जो दुनिया ने हमको सोचा, हमने उनको उससे डबल हासिल करके दिखा दिया। दिस इज इंडिया, राइट। तो उन्होंने जो हम पे जो सोचा था, हमने उससे अच्छा परफॉर्म किया। वैक्सीनेशन, ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, GST डेटा, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा उम्मीदें इंडिया पे रखी गई है। और जो एक्टिव केसेस है इंडिया में, वो भी जिस प्रकार से कम हुए हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए 2021 और 2022, देखो जनरली IMF 2 ही साल प्रेडिक्ट करता है। कभी भी आप देखोगे वो 2 साल प्रेडिक्ट करेंगे, राइट। तो दोनों ही साल इन्होंने क्या बोला, इंडिया शुड बी आउट परफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो आपने ये जो डेटा दिया है ना यहाँ पे चिराग भाई, इक्विटी GDP, आपको क्या लगता है भारत में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे वो भारत में ही करना है सर, बाहर जाना ही नहीं है। तो पूरी दुनिया अब तो मान गई, बराबर ना? राइट। सो दिस वाज अ वंडरफुल, ये लास्ट वीक का मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया न्यूज था, है कि नहीं? 2-3 दिन पहले आया था सर। या बहुत लोगों को लगता था कि इस साल यूके वापस इंडिया से आगे निकल जाएगी, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ बहुत गिरने वाला था। लेकिन अब देखेंगे 2020 में क्या होता है, राइट, जब एक्चुअल डेटा आता है। अभी तो ये प्रेडिक्शन है, बट दिस इज प्रूवन चिराग भाई कि आप हो, मैं हूं, आप सब दोस्त लोग जो भी इंडिया में निवेश कर रहे हो, हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में निवेश कर रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, पैसा बनना है। जो वॉरेन बफेट सर को जो फायदा हुआ था, वो अब हमें हो सकता है। इतना बड़ा नहीं पता, हो सकता है, होने ही वाला है, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है चिराग भाई कि हम अगर ऐसे कंट्री में निवेश कर रहे हैं जो 8 से 10% से बढ़ने वाला है, तो हमको ऐसी इंडस्ट्री मिलेगी जो 15% से ग्रोथ करे। मिलेगी कि नहीं? मिलेगी सर। अगर आप 15% ग्रोथ वाली इंडस्ट्री ढूंढने में कामयाब होते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा 15% से बढ़ने वाला है। हाँ सर, एकदम कितना सिंपल है, राइट। ओके सर। तो मैंने ये जो टेबल था, ये आप लोगों को एक चैलेंज दिया था। देखो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इतने बड़े भारत में मुझे कौन सी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना है, राइट। मैंने आपको 15 कॉलम दिए थे, आपने 46 कॉलम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है चिराग भाई। ये मुश्किल ही रहेगी, आप नहीं,
मेरे साथ भी यही मुश्किल थी, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया था, राइट। सर ये शुरुआत में यही डाइवर्सिफिकेशन रखे, 100% से जैसे ज्यादा हो गया। जैसे क्या कह रहे हो? ये मेरा एक मतलब डाउट भी था, जैसे ये हाँ। वेटेज काफी इंडस्ट्री में 2% लिखा है, हाँ, टोटल 123% हो गया। तो वो तो और होगा नहीं कभी, अपने पास और पैसा तो कंपनी 100% है, बराबर ना? और कंपनी के साथ भी यही हुआ सर, जैसे मिनिमम भी डाला अच्छी कंपनियों में, तो भी वो 120% के आसपास चला गया। होगा होगा, लेकिन इसका मैं इलाज भी बताऊंगा आज, क्या करे। पर उसी सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर पूछूं कौन से इंडस्ट्री में पैसा डालोगे, तो मुझे आप फटाफट 5 इंडस्ट्री बताओगे? मुझे पूछ रहे हो सर आप? हाँ, आपको, मुझे आप 5 इंडस्ट्री बताओगे, कौन सी 5 इंडस्ट्री आपकी प्रायोरिटी वाली है आने वाले 10 साल में वेल्थ क्रिएट करने के लिए? बताइए, मैं लिखता हूँ यहाँ। सेकंड जाएगी सर हमारी ये वाली HDFC, जो प्रॉपर HDFC है वो। थर्ड नहीं, कंपनी नहीं चाहिए मेरे को, सेक्टर सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद IT सेक्टर जाएगा। सबसे पहला हाउसिंग फाइनेंस। नहीं, सबसे पहला प्राइवेट बैंक, बैंक, देन हाउसिंग फाइनेंस, देन NBFC, उसके बाद IT, और उसके बाद हम देखें कि कंज्यूमर में जाए, डिपार्टमेंटल स्टोर जाएंगे सर, डिपार्टमेंटल स्टोर। ओके, 5 सेक्टर हो गए, राइट। देखो, जब भी कोई 5 सेक्टर आपसे पूछता है तो ये हमेशा मुंह पे होने चाहिए, सोचने का नहीं। ओके इंडिया सर। का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक है, डिस्टिलरीज है, एयरलाइंस है। इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रिटेल है, रिटेल, हाँ। या स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पर सबसे पहला अगर कोई पूछे तो याद रखो, रिटेल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट है, राइट। इंटरनेट है, बराबर की नहीं? तो आपने जो बोला वो गलत नहीं बोला है, आपने परफेक्ट बोला है। पर सोचने लगे, मैं आपको कल, आप कौन सी सिटी में अभी रह रहे हो? अभी तो सर मैं बिजड़ा करके गांव में रह रहा हूँ। बिजड़ा, यस। मैं कल अगर रात को अचानक बिजड़ा आ गया और चिराग भाई को नींद से उठाता हूँ, चिराग भाई उठो उठो उठो, 5 सेक्टर बताओ, बाजार 5000 पॉइंट गिरा है, तो एकदम नींद से जाग के चिराग भाई के पास 5 सेक्टर तो होने ही चाहिए। ओके, होने चाहिए कि नहीं? पक्का होना चाहिए, राइट। ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, जो धीमे धीमे आएगा जैसे जैसे आप लोग सेक्टर बताओगे, राइट चिराग भाई? ओके सर, ओके। तो आपने जो भी सेक्टर लिखे, बढ़िया सेक्टर लिखे हुए, यहाँ पे पहले मेरा काम बनता है, मैं सेक्टर प्रॉपर ढूंढू और फिर इन सेक्टर में से अलग अलग कंपनियां ढूंढू, राइट। अब मैं आपको नहीं, किसी और को सवाल पूछता हूं। अरुण कुमार जी, यस। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। सबसे पहले मुझे बताओ, चिराग भाई बोलते हैं उनको प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना है। यस सर। तो मैंने भी आपको नींद से जगाया। यस सर। तो आपका शहर कौन सा? पंजाब का? खन्ना। यस, एशियाज बिगेस्ट ग्रेन मार्केट। क्या बात है। तो मैं खन्ना आया हुआ हूँ और रात को जगाया अरुण भाई को। अरुण भाई जोरदार बैंक निफ्टी गिरा है, प्राइवेट बैंक में कुछ लेना है कल, कुछ बताओ क्या लूं? HDFC बैंक। ओके, DCB बैंक। पता नहीं सर। अरे टिप आइए, ये डबल तो नहीं वाला है? नहीं। कौन सा लिखूं मैं यहाँ पे? HDFC। अरे वो तो बहुत चल गया है, लेकिन सर बड़ा तो बड़ा रहेगा ही ना, उसमें सर उतनी फोर्स भी है चलने की। बाजार में स्टोरी ऐसी होती है, ये तो चल गया है, अब ये चलेगा। HDFC चल गया, अभी इसकी बारी, तुम देखते जाओ, है ना? तो चलो, प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, हाउसिंग फाइनेंस में HDFC कॉर्पोरेशन। HDFC कॉर्पोरेशन। HDFC, गुड। NBFC में? NBFC सर मैंने मतलब वो नहीं किया, देखा ही नहीं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जीवन या कुछ, वो तो उसमें थे। नहीं सर, पता कोई नहीं। भी कंपनी ऐसी बोलो ना जो फाइनेंस में है। बजाज फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस तो ले ली, उसके अलावा और कौन सा फाइनेंस है जो बड़ा है? बजाज फाइनेंस। वेरी गुड। अरे वो धनी करके एक कंपनी है, धनी। वो तो सर सिर्फ एडवर्टीजमेंट चल रहा है, बजाज का परफॉर्मेंस आ रहा है। धन लेके जाएगी सर।
अरे ऐसा ओके चलो तो फिर कोई बात नहीं। आईटी में बताओ मेरे को। TCS टीसीएस। डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट ये अपना एवेन्यू। डिमार्ट। बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, आपके स्टॉक मैंने लिख दिए। राइट, अब अगर आपका ध्यान इन 5 कंपनियों पे है अरुण भाई, यस सर। और बाजार सही में गिर रहा है, 1000 पॉइंट तो गिरे ना हम लोग, यस सर, अभी 3 दिन से फॉल ही चल रहा है। या अंदाजे से मैं कह रहा हूँ 1000 पॉइंट गिरे। आपको ध्यान हो तो कुछ समय मैंने कहा था कि 1000 पॉइंट मतलब एकदम नॉर्मल। यस सर। 1000 पॉइंट गिरे तब आप आलस निकाल के खड़े होंगे, चलो यार कुछ माल लिया जाए आज। ठीक सर। राइट, तो चलो अपनी आलस खंके नीचे डालने का समय आ गया है और एक्टिव होने का टाइम वापस आ गया है। यस सर, तो अपना बाय कौन टाइम आ लिया गया था? एक्टिव होने का। आपने मुझे ये सब बैंक बताई, ये सारी चीजें, ये 5 कंपनियां बताई। ये 5 कंपनियां आपके, चिराग भाई के, मेरे अलावा और किसके रडार पे होगी? सब जो बिग इन्वेस्टर्स हैं। इसीलिए ये सब कम टूटती है। समझ में आया? यस सर। इसमें क्यों वॉलेटिलिटी कम आती है? क्योंकि इस पे लेसर द सबका ध्यान रिट्रेसमेंट, है। स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड। या अब वो डीसीबी ज्यादा टूटेगी, हाउसिंग फाइनेंस में दूसरी फाइनेंस कंपनियां ज्यादा टूटेगी, रिटेल फाइनेंस में वो धनी ज्यादा टूटेगा, और आईटी में वो छोटी मोटी कंपनियां ज्यादा टूटती है। पर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग इसलिए रहती है बिकॉज मेजर इन्वेस्टर आर फोकसिंग हियर। उसी प्रकार से सेक्टर भी कुछ कम टूटते हैं। राइट, यस सर। तो अब आप मेरे को फटाफट 5 सेक्टर बताओ, आप किधर पैसा डालोगे? मैंने आपका डेटा तो देखा है, लेकिन आपने भी चिराग भाई की तरह बहुत लंबा डेटा बनाया टॉप से एकदम। देखिए कितना? 65 सेक्टर। तो आपको तो पूरे इंडिया में पैसा डालना है अभी। सर टॉप से मतलब एक मिनट देखिए। राइट, बताइए मेरे को कौन से 5 सेक्टर बताओ जो एकदम तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। बताइए। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। फिर पैथ लैब। कौन सा? लैब्स। पैथ लैब्स। फिर स्पेशलिटी केमिकल्स। देखो दूसरे लोग हैं ना, अलग अलग सीट में चले गए देखने के लिए कि मैं कौन सा बोलूंगा जब पीयूष भाई पूछेंगे तो। फिर कौन सा बोलो स्पेशलिटी केमिकल के बाद? सर उसमें मतलब सीमेंट आ जाएगा। सीमेंट। हेलो। सीमेंट, यस। फिर और जुबिलेंट वाला सर, रेस्टोरेंट। देखो अभी भी आप लोग कंपनी पे जा रहे हो, कंपनी भूल क्विक जाओ। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, QSR। या चलो क्यूएसआर, खाली क्यूएसआर मत बोलो। देखो क्लियर रहो एकदम अरुण भाई, खाली क्यूएसआर नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट्स। जब हमने बर्गर किंग बताया था आईपीओ, उस समय हमने ये कहा था कि फाइन डाइनिंग भी चलेगा। राइट, देखो मेरे शहर में भी कुछ फाइन डाइनिंग्स है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं और उनके धंधे जबरदस्त चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली क्यूएसआर चल रहा है। जो फाइन डाइनिंग देगा, अच्छी क्वालिटी होगी। राइट, यस सर। बायोटेक्नोलॉजी। या लिख दो यहाँ पे बायोटेक। ओके, आपने तो 3 के बदले 6 बता दिए। डिलीट करना हो तो कौन सा डिलीट करूंगा वो बताओ। चलो 6 में से कोई एक डिलीट कराओ। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया ये तो, फिर भी बोलना पड़ेगा। सीमेंट। सीमेंट रहेगा सर। चलो कर देता हूँ, आपने बोला तो मैं डिलीट करता हूँ। लेकिन आज सीमेंट पे प्रेजेंट करने वाले, फिर आप लिखने वाले हो वापस सीमेंट यहाँ पे। ठीक है। राइट, नो प्रॉब्लम। चलिए धन्यवाद अरुण जी आपका। आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं लेता हूं ललित भाई से। क्या ललित भाई ऑनलाइन है अभी? यार ललित भाई। हाँ जी सर। ललित भाई, सॉफ्टवेयर में मेरे को कंपनी लेना है। आपने पूछा, फोन लगाया है आपने अरुण भाई को, अरुण भाई यार बाजार गिरा है, सॉफ्टवेयर में क्या उठाऊं? आपके हिसाब से अरुण जी कौन सा शेयर आपको रिकमेंड करेंगे सॉफ्टवेयर में से? सॉफ्टवेयर यानी आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी कंसल्टिंग नहीं, हाँ आईटी सॉफ्टवेयर में टाटा है। बराबर है, बराबर है, यस यस, टाटा एलेक्सी। करेक्ट करेक्ट। पैथोलैब में क्या? इसमें 2-3 पैथोलॉजी है सब लैब इसमें। ये डॉक्टर एस्टर डीएम। एस्टर में नहीं, वो तो डेप्थ ज्यादा है इसमें।
क्या टर्नओवर बात ज्यादा है, कर एकदम दी। बढ़िया। चलो डॉक्टर लालपत लैब स्पेशलिटी केमिकल में, इसमें तो लाइन लगी हुई है कंपनी की, सब कंपनियां लाइफ टाइम हाई लगा रही है। में सबसे ज्यादा लोग ऐसे भी फंसेंगे। बहुत, हाँ अतुल, लिख दूं अतुल? हाँ सही है। ओके। क्यूएसआर में अतुल, पीडीलाइट, 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 हाँ पीडीलाइट है। मेरे को लगा, देखो अतुल भी पैसे तो कमा के देगा, पर पीडीलाइट, पीडीलाइट, पीडीलाइट क्यूएसआर में। यस ललित भाई, क्यूएसआर में बर्गर किंग, हाँ सर। लिख दूं बर्गर किंग? नहीं नहीं, उसमें तो बढ़िया एक है वो जुबिलेंट फूड। ओके। बायोटेक में? बायोटेक में एक ही है, बायोकॉन। ओके। तो आपने मेरे को 5 कंपनी बताई। अगेन आप ये 5 देखो, ये 5 देखो, सब पे ध्यान होगा किसी न किसी का, बड़े निवेशकों का। और आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि किस प्रकार से जो बड़े निवेशक है वो इन कंपनियों में जगह बनाए जा रहे हैं। दे आर रेगुलरली एक्यूमुलेटिंग दिस कंपनीज, राइट? ओके। So these are the companies recommended by you to Yes. set in your portfolio, right? Okay. yes. ललित भाई, हाँ जी, आपके सेक्टर, हाँ हाँ। आपने मेरा परफेक्ट 15 लिखे, क्या बात है, वंडरफुल। तो मैं आपके टॉप 5 सेक्टर इधर पढ़ता हूं। हाँ हाँ। अदर, नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर, यूटिलिटीज में, बराबर। हाँ जी, एडवर्टाइज मीडिया आपने बोला है, हाँ इंटरनेट जी, सॉफ्टवेयर, स्पेशल कंज्यूमर और एग्रो, ये आपके एग्रो, टॉप 5 प्रायोरिटी के सेक्टर हुए। हाँ जी। डन समझू मैं ये सेक्टर को, कि कुछ प्लस माइनस करना है? प्लस माइनस करने का है। कौन सा? हाँ, इसमें ये जो है एडवर्टाइजिंग तो है, एक डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट ऐड करूं तो उसको हटाए किसको इनमें से? ये यूटिलिटी, ये हटा दो। हाँ ये ओके हटा दो। हाँ ओके, चलिए बढ़िया। तो ये आपकी टॉप 5 प्रायोरिटी सेक्टर हुए, राइट? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी शीट में, ये है ललित भाई के टॉप प्रायोरिटी सेक्टर। ओके। साबिर जी, या साबिर और खान जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? फाइन एकदम आप? एकदम सर, बिल्कुल फाइन। एक जो इंटरनेट सॉफ्टवेयर है ना, इसमें वो लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन माल तो ले लिया, ट्रेड हो गया ललित भाई, कोई बात नहीं। अभी तो ब्रोकरेज लग जाएगी। नहीं नहीं, सही है, सही है। चलो लाइफ इंश्योरेंस, लिख देता हूँ हाँ लाइफ इंश्योरेंस, कोई बात हाँ नहीं, जी, ओके क्योंकि ओके। हम डिसीजन ऐसे जल्दबाजी में तो लेने वाले नहीं, नहीं नहीं शांति नहीं, से ही लेंगे, बराबर ना? हाँ जी हाँ जी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो साबिर खान जी, यस सर। आप एक्सट्रीम ईस्ट में रहते हो इंडिया के, जो है कोलकाता, और जिस प्रकार से आप इंडिया का एक्सट्रीम ईस्ट में रहते हो, उसी प्रकार से ललित सूर्या जी इंडिया के एक्सट्रीम वेस्ट में रहते हैं, जो है जामनगर। वाह, बिल्कुल ऑपोजिट, इंडिया के 2 कोने हैं। तो ललित भाई और साबिर जी की बात चल रही है यहाँ पे। ललित भाई ने 5 सेक्टर तैयार रखे हैं, मेरे को इन 5 सेक्टर में माल लेना है। साबिर जी, रिकमेंड करोगे एडवर्टाइज मीडिया में क्या लेना चाहिए ललित भाई को? एफएल सर। ओके, एनडीटीवी, एफएल एफएल पक्का? पक्का सर। ओके। आज ही कहीं मैंने पढ़ा इन्होंने कोई कंपनी खरीदा है न्यूजीलैंड का कि ऑस्ट्रेलिया का शायद, तो ये तो बात तय है, ये सब कंपनियां ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों करने वाली है, इसी प्रकार से मोटी होती जाती है। ओके, व्हाट आई विल बाय इन लाइफ इंश्योरेंस? एचडीएफसी सर। एचडीएफसी लाइफ, आई हैव व्हाट? स्पेशल कंज्यूमर सर्विस। टीम लीज। क्या बात है, क्या बात है, सब सेक्टर की कंपनियां मुंह पे हो गई एकदम। एग्रो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है सर, लेकिन इसमें आरती इंडस्ट्री ठीक है, बोल सकता हूँ। ओके, आरती इंडस्ट्री। फिर इसमें तो नो डाउट है सर, डीमार्ट। ओके,
अभी ये आपने मेरे को 5 कंपनियां बताई, राइट? यस सर। यहाँ पे ये जो सेक्टर जब ललित भाई ने बताया ना, देखो पैथोलॉजी लैब का जो सेक्टर है ये बहुत ग्रोइंग है, क्यूएसआर ग्रोइंग है, पर ये चिराग भाई में रह गया, ये याद कराया अरुण भाई ने। उसी प्रकार से अगर मैं आपके सेक्टर में देखूं ललित भाई के, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट मीडिया सिलेक्ट किया, लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशल कंज्यूमर, देखो स्पेशल कंज्यूमर भी इमर्जिंग सेक्टर है, राइट? ध्यान रहना ही चाहिए अपना, एडवर्टाइजिंग मीडिया इमर्जिंग सेक्टर, एग्रोकेमिकल तगड़ा सेक्टर, एकदम मस्त सेक्टर, राइट? तो बढ़िया, आपके भी सेक्टर सब बहुत अच्छे हैं ललित भाई। लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी है जहां पे आपको थोड़ा प्लस माइनस है, आप एग्री नहीं करते हो साबिर जी से, वो कहाँ करोगे बोलो? कि सारी जो उन्होंने बताई वही कंपनी बाय करनी है ललित भाई? एग्रोकेमिकल में सबसे बढ़िया पीआई इंडस्ट्री है। चलो पीआई लिख दिया। तो आप एक दूसरे को समझा सकते हो क्यों आपने पीआई बोला और क्यों साबिर जी ने आरती बोला? यस, तो दोनों को डेटा पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। हाँ, इसमें पर PI ध्यान, है, जो भी जितना कुछ ध्यान है उसके हिसाब से तो बताओ थोड़ा कि आपने क्यों आरती उसका सिलेक्ट नहीं किया? उसका डेप्थ और उसका ग्रोथ कंस्ट्रेंट अच्छा होगा पीआई का, इसलिए। ओके, और आपने क्यों आरती सिलेक्ट किया साबिर जी? सर, मेरे ध्यान में कुछ नहीं था, इसके अलावा और कुछ याद नहीं आ रहा था एग्रोकेमिकल। अच्छा, पर देखो याद नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं है, इसी में हम फंसेंगे। आपको क्यों आरती ध्यान है पता है? जैसा स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में भी हो रहा है, सब कंपनियां चल रही है क्योंकि सेक्टर अच्छा है, पर हमें वो चकाचौंध में नहीं आ जाने का। इसे चकाचौंध कहते हैं, ज्यादा लोग तेजी में ही फंसते हैं। उसी बिल्कुल। प्रकार से जब सेक्टर चल रहा होता है, तभी लोगों के फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो कोई भी कंपनी ले लेते हैं, राइट? हम राइट सर। अगर कोई भी देखेंगे हमें सब अच्छी लगेगी, लेकिन हम अगर पैरामीटर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से पीआई इंडस्ट्री आरती से कहीं आगे निकल जाएगी, राइट? ओके सर। तो ये थोड़ा सर चेक मेरे कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, हाँ, पर आप थोड़ा डेटा नहीं देख सर, लीजिएगा, बिल्कुल करना ही है सर। राइट? अभी तो आपने बनाया नहीं है, ये खुद से किया नहीं, अभी बाकी है। ओके, बराबर है, सर डेटा देखोगे मेरा तो जो थोड़ा क्लियर होगा, राइट ना? राइट सर। ओके, हेलो वंडरफुल। हेलो यस, कहिए। सर, एक हाँ आपने सर, बोला मेरा जो ऑर्गेनिक। पोर्टफोलियो था ना सब इतने वर्षों से सर, हाँ, इसमें सब पेनी स्टॉक कम प्राइस वाली ज्यादा थी। ओके, अभी अभी मैंने 3-4 महीने से ये सब पूरा उल्टा चेंज कर दिया। ओके, ये सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जो है ना बढ़िया कंपनी, वो सब लेके रख दिया है सर, बहुत 2 महीने अच्छे, पहले। बहुत अच्छे, धीरे बढ़िया। धीरे ऐसा करते हैं। हाँ जी तो सर जी। अब क्या है, पूरा पहली मेरा स्टॉक मेरा अगर माइंड, होंगे ललित मेरा भाई, तो जो आपको माइंड, डिविडेंड भी कुछ भी नहीं आता होगा। मेरा जो इमोशन था लाइन, वो जो इमोशन था मेरा, वर्षों हाँ, से मेरा प्रोग्राम था माइंड में एक ही, ओके, दूसरे के पास वो जो बात ब्रोकर की सुनने का, न्यूज़पेपर में जो आएगा वो करने का, वो सब बंद कर दिया है मैंने बहुत अब अच्छा, 3-4 महीने से। लेकिन लास्ट 2 महीने से धीरे धीरे ओके सब ये ओके, मेरा एक सूत्र है सर। ओके, अभी ये सब ये जो ट्रेनिंग के बाद मैंने अभी निकाला है, हाँ, हाँ, जो ऐसा जो पोजिशनल ट्रेडिंग वाला बोलता है, ट्रेंड इज योर हाँ, माय बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बेंड। हाँ, 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 ऐसा मैंने एक दूसरा एक ये ट्रेनिंग के बाद अभी मैं निकाला है कंक्लूज करके, फॉर वेल्थ क्रिएटर के लिए टॉप ग्रोथ ओके, सेक्टर बोलो। की टॉप क्वालिटी कंपनी में इज माय फ्रेंड फॉर 10, 20, 30 इयर्स। ओके, टॉप, मैं लिख देता हूँ, टॉप क्वालिटी, टॉप ग्रोथ सेक्टर की, अच्छा, टॉप ग्रोथ फ्रॉम सेक्टर की टॉप क्वालिटी कंपनी इज माय बेस्ट फ्रेंड टॉप ग्रोइंग सेक्टर की टॉप क्वालिटी कंपनी, हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी कंपनी इज इज माय माय फ्रेंड, बेस्ट बराबर ना? फ्रेंड। हाँ, फॉर 10, 20, 30 इयर्स।
राइट। वेल्थ क्रिएशन तो ही होगा ना। हाँ बराबर। हाँ। तो बिल्कुल सही आपने अपना कोट बनाया है, और वेरी गुड। इसमें एक दूसरा जोड़ दिया है साइड में। हाँ हाँ पूरा काम होगा, पूरा सर्कल होगा कि ओके। बाय करेक्शन मोड साइडवे हाँ 50-20 मेमा। ये मैंने 20 मेमा तो नहीं सिखाई है, लेकिन 5100 50 और 100 हाँ 100 ओके मेमा। हाँ ओके। जी, हाँ जी। राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट एकदम। 3-4 वर्ष में करेक्शन आएगा तो 50-100 मेमा आएगी। हाँ, और 8-1 साल में आपको तगड़ा करेक्शन भी मिलेगा, 100-200 मेमा वाला भी, बराबर ना। ये पॉलिसी जो होती है, सबकी पॉलिसी होता है, गोल होता है ना, ये पॉलिसी बनाया है मेरा। बराबर है, बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया है, लेकिन अभी पेशेंस रखना पड़ेगा इस पॉलिसी के साथ, बराबर ना। बहुत बहुत रखना पड़ेगा सर। या बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ललित भाई आपका ये पॉलिसी देख के, और इसी प्रकार से आगे बढ़िएगा, बढ़िया रहेगा आने वाला टाइम, राइट। हेलो हाँ जी। हेलो यस प्लीज। सर, आप एक ऑर्गेनिक ग्रोथ और कुछ ऐसी बात कर रहे थे, वो क्या चीज़ है ऑर्गेनिक ग्रोथ? एचडीएफसी में कुछ बात चल रही थी बराबर है, जैसे। यस यस यस। अभी मैं ऑर्गेनिक ग्रोथ बता रहा था एफल में, कि एफल ने यस कोई कंपनी खरीदी है। यस जैसे सर। आज आप अल्ट्राटेक का रिजल्ट देखने वाले हो, जो ठीक आपको सर। युद्धवीर जी प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि अल्ट्राटेक ने पिछले साल सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदी, ठीक उससे सर। पहले जेपी एसोसिएट खरीदी, ठीक उससे सर। पहले कुछ और, मैं तो सब नाम भी भूल गया अभी, कितनी कंपनी वो खरीदते ही रहते कंपनियां। ठीक इसका सर। मतलब यह है कि अल्ट्राटेक दो प्रकार से ग्रो करती है। एक पहला, तो विर्थ खुद ग्रोथ हो प्लांट रही में है। एक्सपांशन करती है, एक्सपांशन बोलते हैं, खुद प्लांट बढ़ाती रहती है और ग्रोथ करती है। और दूसरा, अलग अलग कंपनियों को खरीदती रहती है। तो ये ठीक हुआ सर। इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक माने नॉर्मल केस में जो वो बढ़ती रहती है, राइट। पर्सनल ग्रोथ ऑर्गेनिक, वाइडन करना अपने आप को इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, दूसरों को खरीद खरीद के, जो हाँ, अदानी कर अपना रहा है। अदानी पेनिट्रेशन या बड़ी अपने आप कंपनी को कैसे वाइड बन रहा करना, है, मीन्स या नए वर्टिकल्स अब ये में भी जाना। अच्छी बात है अशोक भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है अरुण भाई, है ना। नए नए वर्टिकल्स में जाना तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। नहीं नहीं, नए वर्टिकल नहीं बोलने के, वर्टिकल वो ही होंगे, ठीक लेकिन सर। अभी मैं खुद प्लांट लगाऊं, मैं कब उसको इंस्टॉल करूं, कब कमीशन करूं, कब चालू करूं, इससे तो ऑलरेडी प्लांट है जो, जिनको धंधा करना आता नहीं है, लॉसेस कर रहे हैं। अब सेम मैं तो वर्टिकल ऑलरेडी में मेरा धंधा कर रहा हूँ। सेम वर्टिकल में मैंने और प्लांट ले लिया सस्ते या में, जैसे एयरलाइंस कर रहा था। करेक्ट करेक्ट, ठीक सर। बराबर ना। तो ठीक सर। ये आप देखोगे उन कंपनियों में ये दोनों प्रकार का ग्रोथ मिलेगा, जो कंपनियां अच्छा मार्जिन रख पाती है, जो सब पैसा उड़ा नहीं देती है डिविडेंड में, जिसमें अपने रिजर्व पास होगा रखती वही है ट्रेड रिजर्व में। करेंगे, जिनमें या रिजर्व नहीं तो होगा। वो खरीदेंगे कैसे दूसरी कंपनियों को, यस सर। राइट। यस सर। ओके, तो अभी साबिर जी से पूछ रहे, तो साबिर जी 5 सेक्टर बताओ, चलो आपके एकदम टॉप। सर मेरा है डिपार्टमेंटल स्टोर, हम्म, बायोटेक्नोलॉजी, ओके लाइफ इंश्योरेंस, ओके, सीमेंट, हम्म। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो ये लोग भूल गए थे, है ना, और ये आपने याद रखा, वंडरफुल। तो पांचों सेक्टर आपके बिल्कुल परफेक्ट है, हाई ग्रोइंग सेक्टर है, पर तगड़ा ग्रोथ यहाँ पे मिलना चाहिए, राइट। अब आपके जो सेक्टर है, चलो मैं मेहुल भाई से पूछता हूँ। यस मेहुल भाई। यस सर, कैसे हो सर? मेहुल भाई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? हाँ सर, कर दिया सर। कैसे या हो सर? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? या हाँ तो सर। मेहुल भाई, अभी साबिर जी जो है, उनको पता नहीं है डिपार्टमेंट स्टोर में कौन सा शेयर खरीदे, क्या रिकमेंड करोगे? हाँ, डीमार्ट सर। डीमार्ट। बायोटेक? बायो कौन सर है? उसमें तो एक ही है सर। लाइफ इंश्योरेंस? इसमें एसबीआई और एचडीएफसी दोनों रख सकते कर ले सकते हैं सर। हेलो।
अच्छा, ये जो मैंने लिखा वो नहीं? नहीं सर, नेक्स्ट मेहुल भाई, फाइनेंशियल नहीं। नेक्स्ट नहीं? नहीं सर, नहीं सर। तो कौन सा लिखूं बोलो? HDFC और HDFC? SBI। हाँ। HDFC और नहीं सर, वो तो अभी लिस्टिंग ही नहीं है सर, SBI वाली, SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो लिखूं कौन सा? HDFC लाइफ लिखूं ना? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके। सीमेंट? अल्ट्राटेक। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में वो देखना पड़ेगा सर। अरे क्या बात है मेहुल भाई, सेक्टर देखना रह गया है। चलो चलो, मेहुल भाई को कौन हेल्प करेगा? वोल्टास सर। साबिर जी समझाओ मेहुल भाई को, आपको कौन सा कंपनी खरीदना चाहिए? हैवल। वोल्टास? हैवल। क्यों लेकिन? वोल्टास। नहीं, हेवल नहीं आएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में। वोल्टास सर। या वोल्टास कह रहे हो ना, पर वोल्टास क्यों, वो भी समझाना पड़ेगा। लीडर है सर अपने ग्रुप का। ओके, राइट, लीडर है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, राइट। बराबर। जब 50% पॉपुलेशन अपना बिलो पॉवर्टी लाइन था, एसी बहुत कम लोग खरीद सकते थे, तब भी ये कंपनी लॉस नहीं करती थी, यस। बराबर कि नहीं? तो अभी तो इनको चांदी चांदी है, अभी तो लोग कमाने लगे। तो आने वाला दशक तो वोल्टास वो ग्रोथ करेगा जो उसने पहले कभी नहीं किया है। तो भूलना नहीं चाहिए हमें वोल्टास को, राइट। तो राकेश भाई आपने बिल्कुल सही याद कराया, वोल्टास, राइट। यस सर। तो पांचों कंपनी आपकी होगी। अब देखो, जितना हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ कंपनियां यहाँ पे मैच होती जा रही है, हाँ कॉमन है सर, काफी सारी कॉमन है। तो ऐसा ही कब होगा पता है? अभी जब बाजार गिरता है ना, तो सारे FII म्यूचुअल फंड माल लेने को आते हैं। उनको पता है माल कब लेना है, रैली में, जब बराबर ना? नहीं। हाँ कब लेना है? जब बाजार गिरता है तब। हाँ, फॉल में। तो फॉल में फॉल में। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी कुछ कंपनियां कॉमन हो जाती। तो अपने पास ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो उन लोगों के रडार पे है। समझ में आया ना? हाँ सर। हम उनका पीछा नहीं करेंगे कि भाई HDFC म्यूचुअल फंड ने क्या लिया है, पर हमें पता है बेटा तुम क्या लेने वाले हो, राइट। दिस Yes, इज sir. द वे। तो परफेक्ट मेहुल भाई। अब मेहुल भाई लगा हुआ था, आप भी बता दो आपके टॉप 5 सेक्टर। एक तो सर प्राइवेट बैंकिंग, ओके, IT, IT, ओके, हेल्थ केयर सर्विस। ये कुछ नया आया, ओके। ये सर इसका ग्रोथ तो कंटिन्यूस रहने ही वाला है। मैंने एक है, ही कंपनी। लेकिन मैंने नया क्यों बोला मेहुल भाई? क्योंकि ऊपर नहीं आया कहीं पे भी, हाँ सर। इसलिए, है ना? ओके, फिर चौथा, एडवर्टाइजिंग और मीडिया। ओके, और सीमेंट। पांचवा सीमेंट सर, सीमेंट। क्या? हेलो। हाँ मेहुल भाई, कौन सा? सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट। सीमेंट, वंडरफुल। तो आपके हिसाब से ये 5 सेक्टर अच्छे रहने चाहिए, राइट? हाँ गुड, सर। ओके, चलिए, नो प्रॉब्लम। मैं आपके जो सेक्टर है उनमें कुछ अच्छी कंपनियां सिलेक्ट करने के लिए मैं प्रबल भाई से कुछ सवाल करता हूं। यस प्रबल जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Tell me. Yeah. So Mehul bhai want to buy companies from these 5 sectors. Yes, sir. What should you recommend from private bank? HDFC Bank, I mean. Yeah. What do you HDFC Bank, Okay. Right. From IT. TCS, Okay.
Healthcare services, Healthcare, Lal Path. advertising, Affel, okay, and cement, Ultratech. okay. So see कितना मैच कर रहा है, राइट ना? अब आपने देखा प्रबल जी कि क्यों अल्ट्राटेक में इतने सारे एफआईआई थे? Right. मेरे ख्याल से मेजर पोर्शन इनका शेयर होल्डिंग एफआईआई और म्यूचुअल फंड से भरा हुआ है, हाँ सर. क्योंकि सबका ध्यान है और ये लोग हर बार जब भी शेयर टूटता है तब उसका फायदा उठाते हैं. हाँ सर. ओके, तो सारी कंपनी आपकी एकदम परफेक्ट है. मेहुल भाई, क्या आप एग्री करते हो ये सारी कंपनी से कि आपका ध्यान कोई और कंपनी पे है इसमें से? नहीं सर, ये कंप्लीट है, पर मैं खाली इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर. एक जनरल इंश्योरेंस है, तो उसमें एक ही कंपनी है, एक सेक्टर. ICICI. करेक्ट करेक्ट. तो देखो, जनरल इंश्योरेंस भी किसी और की नजर में अब तक आया नहीं है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, राइट? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 15% से 2 दशक से ग्रोथ कर रही है. तो इसमें कौन सा बताया आपने? आईसीआईसीआई, राइट? वेरी गुड. तो मेरे ख्याल से सारी कंपनियां जो आपने बताई ऑल आर मोस्टली कॉमन, और यही कॉमन की वजह से ही उन कंपनियों में इतने बड़े फॉल नहीं आते, राइट? Yes sir. प्रबल जी, आपके पास सेक्टर बता दीजिए. हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप लास्ट में भी ले सकते हो. आई डिडंट अंडरस्टैंड, लाइक आई सॉ योर वीडियोस बट आई डिडंट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ व्हाट इज रिटायर्ड पर्सन डूज. ओके, रिटायर्ड पर्सन डू बिकॉज he will not have regular income, right? So is he going to use the income that he is going to get from equities and everything as his monthly income or something like that? So I just want to know that, sir, about retired employees. And also I didn't understand what you meant by, like you said that in for equities the yield is 4%. Okay, but you are saying that the CAGR will be 15%. So I didn't understand what is the difference between that. If I'm getting a CAGR of 15%, what is my yield and why is it 4%? So those two questions, sir, you can take it later once you finish all this. Yeah, okay. So thank you, no problem. Your query is, I think it would be better if we are going to cover right now. Okay, sir. Right? Yeah. So how it could be simple? Let me check some simplest way to explain you. Just a minute. Majority of the companies which are listed here, what should be your estimated growth in these all companies? Prabal ji. 15% at least. Yeah, 15%. So yes, we are expecting 15% CAGR growth in next coming time. Now, if we are getting 15% CAGR growth in coming time, what is my current yield? मेरे को आज कितना मिल रहा है? आज प्रबल जी कह रहे हैं कि भी तुम्हारा पैसा 15% से बढ़ेगा आने वाले 15 सालों में, लेकिन मुझे आज कितना मिल रहा है? So what is my today's yield? सर आज तो as you said 4%, तो वो समझ में आता है सर. वो ओके, मुझे पता नहीं सर, आई एम जस्ट गेसिंग कि आपने बोला तो 4% ही होगा सर. मैं बता देता हूं आपको. ये मैंने निफ्टी का पी निकाला है. मैं यहाँ पे कल का
हम लास्ट कल के हम डेटा देख रहे हैं, आज का डेटा चलो अपडेट हो गया है, आज के देख रहे हैं, हाँ सर, यस सर। ये कुछ डेटा है, डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू इक्विटी, राइट, पीई, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड। तो ये जो डिविडेंड यील्ड बताया है ये क्या होगा, कोई आप कनेक्ट कर सकते हो? व्हाट इज दिस डिविडेंड यील्ड? सर वो जो कंपनी जो डिविडेंड देंगे सर इन 100 रुपीज, या तो अभी का डिविडेंड यील्ड 1.15 बता रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। Sir, that is, it does say, sir, Britannia is giving a dividend of 1.15. So does it mean that one share of Britannia will give me 1.15? On face value. See, let me explain it in this way. Dividend yield of Nifty is right now 1.15%. Means if I am having 100 rupees invested, how much dividend I am going to get this year? 1.15. Yeah. So it's simple that if I am investing lakh rupees, I am going to get around 11,500 rupees dividend. No, 1,150 rupees dividend this year. Correct? हाँ sir. Now, why you are getting this 1,150 dividend this year? Because in the real sense, earning yield is around 3%. But the whole earning or yield is not transferred to your bank account in the terms of dividend. Some are to be put in reserve, right? And the remaining you are getting in dividend yield. So, okay, here it is. See, if you have invested 100 rupees in Nifty, if you will check their earning, now what is the earning? EPS, or it could be profit of the companies. 3% is their earning, EPS. If you see, let me check your company. For example, you are talking about HDFC Bank. Here I will go to HDFC Bank. Okay. This is HDFC Bank. Its price is 1370. $1370 price. Its earning okay. $49.80. So, Prabalji, you have invested how much? 1370. What is your earning? 49.80. So, can you convert it into percentage? What is your yield in the terms of percentage? It will be around less than 30%. Less than 30. 49.8, less than 3%, sorry, not 30. Yeah. 49.8 divided by 1370. It's 3.6%. Okay, yeah. Right? Yeah. So, this is your yield. Now, if you invest in HDFC Bank, you are getting 3.6 rupees. Right? Sir, will you get 3.6 rupees credit? Sir, I have a question. 3.6 rupees per 100 rupees, right? No, pardon. What did you say? Is it 3.6 rupees per 100 rupees or Correct. per share? Correct. Per
per 100 rupees, 3.6%. Okay, okay. Thank you, sir. I got it. Right? Per share, it should be 49.80. Right? Okay, got it, sir. Thank you. Yeah. So your yield is 3.6. Now, your today's yield is 3.6 in India, and in HDFC Bank, they say that we distribute around 30% into dividend. So tell me, what will be your dividend this year? How much dividend will you get this year in HDFC Bank? If 30%. So it will be 30% of 3.6. No. 30% 49.8. Yeah. So it's how much rupees? 14.90 rupees dividend should be credited in your bank. Correct? Yes, sir. Okay, let me write down dividend. So this is price, this is earning, EPS, and this is dividend. So you said that yield in HDFC Bank is 3.6. But what is the dividend yield in HDFC Bank? Kitna hua? This is the yield. So around 1 point something आएगा sir. हाँ sir, 1 point something आएगा. आप ऐसा करोगे, multiply by 30%, तो भी हो जाएगा, या 1.9 हो गया ना? हाँ sir. 1.1%. So you should be clear that if you are holding only HDFC Bank in your portfolio, today what you get, you are getting 1.1% credit in your bank account, right? Your total earning is 3.6%, but remaining earning goes to reserve, which supports this price. Okay. है ना? अच्छा sir. Correct. Now what will happen? आपका जो 15% जो पैसा पड़ेगा ना, वो क्या पड़ता है? This one, your yield is going to increase. Now tell me one more thing. If today you are getting 3.6% per annum, if your earning grows by 15%, what should be your yield in 2035? बताइए प्रबल जी, अंदाजा लगाओ. 15%. वो तो CAGR मतलब कंपाउंडेड रेट होंगे ना सर? तो या तो मैं सीधा फ्यूचर वैल्यू. हाँ फ्यूचर वैल्यू सर. हाँ 15%. फिर क्या करूं सर? आपका ये दिखाई नहीं दे रहा है सर. 15 मतलब लेट आ रहा है सर. आई डोंट नो, मेरे साइड में हो सकता है सर, मेरे साइड में भी हो सकता है प्रॉब्लम सर. कोई बात नहीं, मैं यह फॉर्मूला लिखता हूं. मेरे को जानना है मेरा अर्निंग, मेरा यील्ड कितना होगा 2035 में. तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग 15% CAGR ग्रोथ. मैं बता दूं HDFC बैंक 2 दशक से 22% से बढ़ रहा है, बट स्टिल डिस्काउंटिंग हमें 15% ही ग्रोथ चाहिए. हाँ सर. तो फर्स्ट इज परसेंटेज, सेकंड इज क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीरियड. हाँ 15 years 14 years. 3.60 14. यू आर करेक्ट. कितना परसेंटेज हो गया? 26%. तो साल का मुझे 26% मिलने का उम्मीद है. गिन सकते हैं हम ऐसे. अब ये 26% आपका ग्रोथ नहीं है, पर मुझे हर साल 26% मिलेगा. यानी आज अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो 2034 आते आते मैं मेरे 100 रुपीज पे उस समय हर साल 26 रुपीज पाने वाला हूं. दिस इज माय एवरी ईयर अर्निंग. डन प्रबल जी? हाँ सर, मेरा प्रिंसिपल मैं टच भी नहीं करूंगा, बट मेरा वहां से अर्निंग 26 आ जाएगा. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग.
और मेरा प्रिंसिपल भी इंक्रीज होगा. इफ आई वांट टू टेक दैट मनी आउट देन दैट्स इनफ 15% CAGR ग्रो होके जो मनी रहेगा वही. Yeah, correct. So you are going to get two types of growth. One will be credited in your bank and another will be reflected in this price. Yeah. Okay. So let me delete all these things from Chirag Bhai's spreadsheet so that he may not get confused. Okay. So now, Piyush bhai, Sir. just to remind you, yes. 8 बज रहे हैं. Yeah, okay. Thank you very much. Right. Yeah. So Prabal ji, which 5 sector you are looking for to invest to create wealth? Sir, it will be private banks, Okay. IT, IT. department store, Okay. then advertising, Okay. and apparels and वो जो accessories का जो है. Good selection. Okay. So these are the 5 focus sector where you are looking for, right? Okay. What will happen if any of your, आप जितने भी लोगों ने भी मेरे सामने सिलेक्ट किया, अगर कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है और उसमें ग्रोथ नहीं आता है, तो प्रबल जी हमें क्या करना चाहिए? So we will reduce the percentage, weightage reduce करना होगा sir. एब्सोल्युटली प्रबल जी, यही मैंने पिछले 10 साल से किया है. मैंने कुछ सेक्टर सोचे थे जो मैंने सोचा वैसे ग्रोथ नहीं कर रहे थे, तो इट वाज ऑल राइट. मैं क्या करता गया, धीमे धीमे स्टेक घटाता गया और वो सेक्टर जहां पे कंटिन्यू ग्रोथ आता गया, आई हैव पुट मोर मनी इन दो सेक्टर. तो इसे क्या कहते हैं? यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विथ डाइवर्सिफिकेशन. Okay. स्लोली आप फोकस्ड इन्वेस्टर हो जाना, राइट? अब शुरुआत में फोकस करोगे नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज योर लर्निंग स्टेज. Initially you will have to diversify your investment, and then as day by day, month by month, year by year, as you gain your more knowledge, experience and wisdom, you are going to become focused investor, right sir? Yes sir, absolutely. Okay, so thank you very much Prabal ji, and Thank you sir. yeah, I will ask one question to Rakesh bhai. Yes Rakesh bhai. प्रबल Yes, जी sir. ने कुछ बैंक सिलेक्ट किए, राइट सर. कुछ सेक्टर सिलेक्ट किए, प्राइवेट बैंक. हाँ जी. तो चलो मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ. प्राइवेट बैंक में क्या लेंगे वो पूछ के, अच्छा. आईटी में भी क्या लेंगे वो पूछ के समय बर्बाद नहीं करना है. डिपार्टमेंट ठीक है, सर. स्टोर भी नहीं, एडवर्ड भी नहीं. मैं जानता हूँ आपके जवाब क्या है. राइट राइट सर. मुझे अप्रैल में बताओ राकेश भाई, टाइटन क्या सर. करें आप? टाइटन. टाइटन. कितना तुरंत ही आपने दे दिया आंसर, राइट? राइट. तो यही होना चाहिए. हमें हमारा नॉलेज उस स्तर पे तो आ ही जाना चाहिए कि हमें Right. सेक्टर पता हो, हमें कंपनी पता हो और हमें उसका करंट सिनेरियो पता हो. राइट सर. करंट सिनेरियो क्या राकेश? सर अभी तो ये अभी तो परचेज नहीं कर सकते हैं. अगर ये थोड़ा सा डाउन होता है तभी इसको परचेज कर सकते हैं. अभी तो रैली मोड में है ये. हेलो. ओके. और करंट सिनेरियो मतलब राकेश भाई इनके हाँ जी. नतीजे कैसे आ रहे हैं, राइट? राइट सर. अगर नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हो, अगर प्रॉफिट्स इनके बढ़ रहे, धंधे बढ़ रहे, तो फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा. आपके हाथ नहीं लगने वाले शेयर. लगेंगे? नहीं आएंगे इस रेट में. नहीं आएंगे. कब लगेंगे? जब करेक्शन मोड में. करेक्शन मोड आए. देखो आज रूट मोबाइल का रिजल्ट आया ना आज. यस. रूट मोबाइल तो वो भी एक फोकस्ड सेक्टर है और फोकस सेक्टर की एक बढ़िया सी कंपनी है. अभी आईपीओ आया. यस सर. अभी रूट मोबाइल का रिजल्ट भी अपडेट किया. रूट मोबाइल ने आज मेरे ख्याल से लोअर सर्किट मारा है ना? नीचे टूट रहा है. पर रूट मोबाइल में हमने क्या प्लान किया?
ये रूट मोबाइल, राइट, 10% लोअर सर्किट, 1148। राइट सर। अब मैं इसके नतीजे आपको कहता हूं। ये कंपनी के राकेश भाई H1 के नतीजे 55% ग्रोथ था, और मतलब सेल्स ग्रोथ था H1 में, राइट 55, और प्रॉफिट बढ़ रहा था इनका 155% से, राइट। तो H1 यानी 3 महीने पहले हम क्या होंगे, एक्सट्रीमली बुलिश, राइट। तो शेयर तो चल गया, और आज ही उसने इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई लगाया था, तो शेयर जबरदस्त चल रहा है, डबल से ज्यादा तो अभी ये 3 महीने में ही हो गया है। अब 9 मंथ के नतीजे आए, आप उम्मीद करके बैठे थे जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, 51% का सेल्स ग्रोथ। तो इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज ग्रोथ है, बहुत अच्छा है, कि उम्मीद से घटिया, क्या कहते हो सर? ये जो इसकी उम्मीद थी ये उसी के आसपास से थोड़ा सा ही कम है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, इसके हिसाब से नहीं कह सकते, अदरवाइज तो बहुत अच्छा। करेक्ट। तो आपने उम्मीद जो करके रखी थी कि ये तो हर बार इसका रिजल्ट बढ़िया आता जा रहा है, हो सकता है 60% से इनके ग्रोथ आए, लेकिन आए कितने, उतने जितने थे, तो चलो उतना तो ऑलरेडी है। अब 10% गिरा है, क्यों? क्योंकि आपने जो उम्मीद रखी थी उससे थोड़े कम आए, पर ये घटिया रिजल्ट नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग भी रिजल्ट नहीं है, राइट सर। आपने जो सोचा था वैसा ही आया, उतना तो चल चुका है, राइट। तो इस साल हम लाइफ टाइम हाई सेल्स उम्मीद रखेंगे इसकी सर, राकेश भाई? यस सर। हाँ, रूट की लाइफ टाइम हाई सेल्स। सर इसको मैंने स्टडी नहीं करा है, बट जिस तरह से ग्रोथ रही है अब तक इसकी, तो लाइफ टाइम हाई तो होना चाहिए, होना चाहिए। 51% ग्रोथ मतलब क्या? कोई डाउट ही नहीं है, लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, और इसीलिए भाव भी लाइफ टाइम हाई पे है, बराबर। तो ऐसे अब मौके जो मिल रहे हैं आपको, लोअर सर्किट है, टूटेगा तो ये टूटने में उसको एक्यूमुलेट करो, और क्या, राइट सर, बराबर है। यस सर। तो इसी प्रकार से आपको मौके मिलेंगे अलग अलग शेयर में, इन मौकों का हमें फायदा उठाना पड़ेगा। सर ये हाथी नहीं लग रहा था, इसलिए इसकी तरफ देखा नहीं, अब ये टूटा तो इसकी तरफ देखेंगे। चलो अभी अभी मौका मिला है, बराबर ना, तो इसको थोड़ा देखेंगे अभी अपने। राइट सर। राइट सर, बायोकॉन में भी वैसा है सर, या बायोकॉन में ऐसा ही है ना, बायोकॉन के नतीजे तो इनफैक्ट बिल्कुल अच्छे नहीं है, सबसे अच्छी कंपनी है, धंधा अभी भी जबरदस्त बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट इनके अच्छे नहीं आ रहे, पिछले 6 महीने पहले अच्छे नहीं आए, 3 महीने पहले अच्छे नहीं आए, अभी भी अच्छे नहीं आए, बराबर। तो ये डाउनवर्ड करेक्शन की ओर है, तो अच्छा है आपको मौका मिला। अब हमने तो अभी 200 रुपए पे वापस लिए थे, राइट। तो आप लोग कह रहे थे हम नहीं ले सके, चलो आपको मौका दे रहा है, अभी ले लेना जैसा आता है, तो राइट सर। या तो इसी प्रकार से आप लोग एक्यूमुलेट करोगे। ये जो मैंने लिस्ट आपको दिया हुआ है, ये पूरा आपका क्वालिटी कंपनीज का है। देखो पहले आपने सेक्टर सेग्रीगेट कर दिए, ये लिस्ट है ना, आप लोगों को जबरदस्त काम लगेगा, इसको बिल्कुल भी लाइटली लेने जैसा लिस्ट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें मटेरियल क्या मिलता है वर्कशॉप में, हम कुछ मटेरियल नहीं देते, मटेरियल आप खुद बनाते हो। देखो ये आपका मटेरियल है, आपने पूरा 4 महीने से मेहनत कर रहे हो, और आपने कुछ सेक्टर ढूंढ निकाले हैं, आप ही ने वेटेज दिया है, राइट। सो दैट्स वंडरफुल। अब इसको इस्तेमाल करो, बाजार गिर रहा है ना, देखो आके, अरे चलो चलो यार, कौन सा सेक्टर है जो अच्छा है, पैसा डालने का है मेरे को ये सेक्टर में। पहले सेक्टर देखो, फिर कंपनी देखो, राइट, वेटेज देखो, और अपने पोर्टफोलियो जो है आपका, वो वेटेज से मैच करो। अरे यार मेरे को एफएल 3% का चाहिए, देखने दो पोर्टफोलियो में कितना है, ओ यार 1% ही है, चलो थोड़ा स्टेक बढ़ाना पड़ेगा इधर। मैंने आमरा राजा बैटरी देखा, अरे यार मेरे पास तो 3% के पड़े हुए, ये तो 2% ही रखने, चलो यार ऐड नहीं करने, राइट, दूसरा सब ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अपने वेटेज को एक्चुअल पोर्टफोलियो के साथ मैच करते जाओ, राइट? कितना आसान सी चीज है और सिंपल सी चीज है। हेलो सर, चिराग। या चिराग बोलो। सर एक क्वेश्चन था। यस। जैसे अभी बीच में 3-4 साल फार्मा नहीं चला था, बराबर है। तो मतलब आप कहते हो कि ये हमें एक्सपेक्टेशन तो उसने बीट की ही होगी सर 3-4 साल में। बिल्कुल नहीं। उतने मतलब बीट मतलब के नीचे वाली कि आपका जो एक्सपेक्टेशन हुआ होगा उतना हाँ। रिजल्ट नहीं आया होगा कंटिन्यूअसली, शायद 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 5 क्वार्टर, तो हम कितना टाइम वेट करेंगे? जैसे देखो, हमें फार्मा है। इंडस्ट्री का सर, जैसे इंडस्ट्री का कैसे पता चलेगा? कंपनी है तो हमें पता चल जाएगा कि चलो ये कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर से इनके सेल डिग्रो कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री का कैसे देखेंगे? देखो, इंडस्ट्री के ही रिजल्ट नहीं आते। जैसे कंपनी रूट का रिजल्ट अच्छा आया, इसका मतलब ये कि इंटरनेट वाले सबका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ओके। टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था, मतलब इन्फी का अच्छा, विप्रो का अच्छा, टेक महिंद्रा का अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक का अच्छा आया, इंडस्ट्री बाकी सबके खराब आए। सर मैंने तो आज फार्मा जो है ये क्वेश्चन पूछने से पहले मैंने डिवीज लैब का चार्ट देखा सर अभी मीटिंग के दौरान। राइट। तो वहां पर क्या था बराबर। कि 2015 में शायद 5-6 मंथ का करेक्शन था, उसके बाद से वो फिर से ऊपर चलने लगी। उसका मतलब उस टाइम पे उसका सेल्स अच्छा आया होगा, मतलब हाइपोथेसिस ले रहा हूं, वो भी मुझे बराबर है। एग्जैक्ट पता नहीं है। नहीं, 5-6 महीने नहीं, ज्यादा नहीं चला था डिवीज लैब, शायद 6-7 क्योंकि डिवीज मंथ लैब तो मेरे पास बहुत टाइम से है। चलो मैं यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ। मैंने मंथली देखा था तो कंटिन्यू 6-7 मंथ रेड में था शायद, एग्जैक्ट तो पता नहीं, 2015-16 के आसपास। कितने? मेरा इंटरनेट मुझे कुछ समय से बहुत हैरान कर रहा है। पिछले 2-3 दिन से अच्छा नहीं है। भारती एयरटेल का शेयर डाउन जाएगा सर? तो लगता ही है। भारती एयरटेल 5G लेके आ रहा है। 5G, 4G, 3G ठीक कर ले तो ठीक। देखिए, नहीं खुलेगा अभी, इनवैलिड सिंबल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। राइट, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सर। फार्मा, ऑटो, ये 4 साल तक खराब थे। ना ऑटो चल रहा था, ना फार्मा चल रहा था। सर हमें लेकिन फिर भी सेल्स ही ट्रैक करने ना, सेल्स फार्मा के लीडर थे। फार्मा का लीडर कौन? डिविस सेल्स। मैं सेल्स ही बता रहा हूँ। कोई फार्मा की कंपनी के धंधे नहीं बढ़ रहे थे। सन फार्मा का लीडर कौन चिराग भाई? सन फार्मा सर। सेल्स में सन फार्मा। सन फार्मा पर नहीं बढ़ रहा था उनका भी धंधा, तो बाकी छोटी कंपनियों का भी नहीं बढ़ रहा था। पिछले 4 साल से पूरा फार्मा प्रेशर में था, पर सबसे पहले सबसे अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आने लगे। हम लोग 2 साल पहले से कह रहे हैं कि फार्मा में इंप्रूवमेंट आने लगा है। तो सबसे पहले इंप्रूवमेंट अच्छी कंपनियों में आए, जैसे फाइजर है, एबोट है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, आपके डिवीज लैब में। तो अच्छी कंपनी में सबसे पहले इंप्रूवमेंट आए और फिर बाकी की कंपनियों के धंधे सुधरने लगे। अभी भी सन फार्मा का धंधा सुधरा है प्रॉफिट में, राइट? तो फार्मा देखो, तो अभी भी फार्मा ने लाइफ टाइम हाई का जो भाव था वो अभी भी पार नहीं किया है, पर डिविज तो अपना ऑलरेडी 3 गुना हो गया, राइट? तो फार्मा खाली सन फार्मा नहीं, कोई फार्मा कंपनी के धंधे कंटिन्यू बरसों तक नहीं बढ़ रहे थे और उसकी इफेक्ट हर एक कंपनी में थी। कोई कंपनी लाइफ टाइम हाई नहीं लगा रही थी। सेम चीज ऑटो में, ऑटो 4 साल नहीं चल रहे थे, कोई कंपनियां नहीं चल रही थी। तो सर ये कॉन्ट्रास्टिंग थिंग नहीं हो गई? एक बात हम बोलते हैं कि जब नहीं चलता तब लेना है, और दूसरी जगह हम ये बोलते हैं कि कम करना है वेटेज। 3-4 साल तो इसका सेल्स बढ़ा ही नहीं, तो अभी नहीं लेना है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, फार्मा जब इनका सेल्स नहीं बढ़ता जा रहा था तब हमें क्या करना था?
वेटेज घटाना था। ओके, मतलब लेना आपके ही नहीं लिए था। सबसे पहला इंडिकेटर है सेल्स। अगर ओके, सेल्स घटते हैं तो कॉशियस हो जाओ। ठीक है। हो सकता है ये सेल्स टेम्पररी घट रहे हो सकता है ये सेल्स लॉन्ग टर्म घट रहे हो सकता है परमानेंट भी घट जाए, हो सकता है कि नहीं, इनमें से कुछ भी चांस हो सकता है, राइट? इनका असल क्या मापदंड रहेगा? टेम्पररी मतलब 2 क्वार्टर या फिर लॉन्ग टर्म मतलब 5 क्वार्टर? यही समझा रहा हूं मैं कि कुछ टेम्पररी मतलब एक आध साल डीग्रोथ आया, ओके, फिर वापस सेल्स आया। जैसे आपने अभी बिहेवियर देखा आपकी कंपनियों का, तो आपने एक चीज नोट की थी कि आपकी कंपनियों के सेल्स बहुत बार ऐसा हुआ था कि नहीं बढ़े थे। हाँ हाँ, 10 कितनी साल में बार, एक आधा 15-20 बार साल आता। में मुश्किल से 1-2 बार ऐसा होता है जब सेल्स नहीं बढ़ते हैं। ओके, कितनी बार? 10 साल में एक आध बार। 10 साल में एक आध बार। तो ये कितना कम चांस होता है जब सेल्स घटते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं प्रॉफिट ट्रैक मत करो, सेल्स ट्रैक करो। अगर आप सेल्स ट्रैक करते हो तो आपको पता चल जाता है कि डिमांड यहाँ पे घटी है तो कॉशियस रहना पड़ेगा। डिमांड अगर घटती है तो बाइंग नहीं करने का, जब ओके, तक कि डिमांड वापस न दिखाई दे, राइट? क्योंकि ये टेम्पररी डिमांड डाउन हो सकती है, टेम्पररी से लॉन्ग टर्म भी डिमांड कम हो सकती है 4-1 साल तक, और परमानेंट भी घुस सकती है, जैसे अभी पेपर इंडस्ट्री चली गई है, न्यूज़पेपर मीडिया, ओके, गिफ्ट आर्टिकल, राइट? ये सब परमानेंटली डाउन है। तो हम सोचेंगे धंधा कम होता जा रहा है तो भी बाय करें, नहीं चलेगा। धंधा घटेगा तो आपको कॉशियस रहना है, तो फिर बाय करने का जरूर नहीं है, और धंधे पे ट्रैक करो। धंधा जैसे ही आपको बढ़ता हुआ दिखे एग्रेसिव हो जाओ, राइट? अब दूसरा इंडिकेटर होता है प्रॉफिट। आपने 10 साल में कितनी बार प्रॉफिट घटते हुए देखे? उसके 2 बार हो सकते हैं, अगर एक बार धंधा घटा है तो 3-4 बार 10 साल में। हाँ, अगर सेल्स एक बार गिरते हैं तो प्रॉफिट उससे ज्यादा बार गिरते हैं, 2-3 बार। या अगर सेल्स 3 बार गिरे हैं तो आप प्रॉफिट देखोगे 6 बार गिरते हैं, तो प्रॉफिट ज्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब ये हुआ चिराग भाई कि आपको प्रॉफिट घटने की वजह से बहुत बार शेयर लेने के मौके देंगे। एक्यूमुलेट करो। ओके, ओके, जैसे अभी बायोकॉन में डिमांड तो वैसे की वैसी ही है, पर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो धंधे तो कमाल के ही है, पर प्रॉफिट नहीं बढ़ने की वजह से नीचे आ रहा है। करेक्ट करो, एक्यूमुलेट करो। ओके, क्योंकि धंधे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वापस कमाल करेगा। हाँ हाँ हाँ, राइट? तो सेल्स और प्रॉफिट को ट्रैक करना बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, राइट? सेल्स घटे तो कॉशियस रहने का, तो बाइंग करने का जरूर नहीं है। बराबर है? डन? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आप लोग अगर अभी जितने भी लोग आप लोग आज के मीटिंग में हो, आप लोग अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जितना भी आपके पास अभी शेयर है उन सबको इसी प्रकार से लाइन में लिख दो। लिख सकते हो ऐसे लाइन में, मेरा रियल पोर्टफोलियो अभी, राइट? ये जो आपका रियल पोर्टफोलियो है उसका ग्रोथ देखो 10 साल का कितना है। डन? अगर आपके रियल पोर्टफोलियो का ग्रोथ खाली 5% का है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा असल में कितने परसेंटेज से बढ़ने वाला है? 5%। तो आप उम्मीद मत रखो कि आपका पोर्टफोलियो 15% से बढ़ेगा। हकीकत है ये, पोर्टफोलियो 5% से ही बढ़ेगा, सिवाय कि आप यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज नहीं करो। कंपनियां ऐसी लेके बैठेंगे जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ की उम्मीद मत रखो। डन? ठीक है, सिंपल है कि कंफ्यूजिंग वाली चीज हुई? बताओ मेरे को ये। नहीं ठीक है सर, सिंपल है। राइट? आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें आपने एक ग्रोथ लिखा। सर मेरे वाली शीट देखना। एक मिनट, आपने लिखा हुआ है? यस। ओके, राइट। अब आपके पास क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस है, यूबीएल है, गेल है, आईजीएल है, एफएल है। आप इनका जब यहाँ पे एवरेज करोगे
और एवरेज आता है 14%। तो एक चीज तय है, आपका पैसा कितने परसेंटेज से बढ़ने वाला है? 14। ये हकीकत है। पर इसको करंट ट्रेंड से भी मापो। करंट ट्रेंड का मतलब क्या अरुण भाई? करंट ईयर ग्रोथ। हाँ? करंट ईयर ग्रोथ। क्या? अब करंट ईयर ट्रेंड बोलता है 5%, तो इसका मतलब क्या? भी अभी ग्रोथ नहीं आ रही उस इन सभी सेक्टर्स, इन सभी स्टॉक्स में। या देखो, आपके जो शेयर है उनका ग्रोथ बढ़िया ही है 14% का, लेकिन करंट ट्रेंड देखे तो उनका करंट ट्रेंड बिगड़ा हुआ है अभी, राइट? अब ये केस में आपको अगर यहाँ पे 14% ही लाना है, आप बोलते हो नहीं मेरा करंट ट्रेंड 14% ही होना चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आपका ये ट्रेंड भी 14% हो जाएगा। कुछ नई एडिशन करनी पड़ेगी। वेटेज इंक्रीज डिक्रीज। यस सर, वही कुछ समझे? नई एडिशन। हाँ जी। जैसे रूट मोबाइल 120% से अगर प्रॉफिट बढ़ रहे, राइट, आपने वहां पे थोड़ा वेटेज बढ़ाया, और ऐसी कंपनियां इंडिगो इस साल लॉस कर रही है, वहां पे थोड़ा आपने अपना स्टेक घटाया, तो इससे ओवरऑल आपका करंट ट्रेंड भी इंप्रूव होता है कि नहीं होता है? होगा सर। तो अपने को यही तो करना है, एकदम सिंपल सी चीज है। आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियर है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड सेट करते जाओ, राइट? आपको पता रहेगा कि मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। गेल में जैसे -5 आया सर। हाँ, तो यहाँ वेटेज आपका कम रहना चाहिए। मैं नहीं कहता बेचो, ऐसा कुछ भी करने का जरूर नहीं है, पर अगर आपका तो आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर गेल है, राइट, और आपके पास 1000 शेयर एफएल के हैं, एफएल का कंटिन्यू रिजल्ट अच्छा आता जा रहा है, आप एफएल में अगर वेटेज बढ़ाते हो, गेल में घटाते हो, तो ओवरऑल नीचे का चित्र सुधर जाएगा कि नहीं? यस सर। राइट, ये आपके पोर्टफोलियो को इमीडिएटली इंप्रूव कर देता है, राइट? और हकीकत क्या है, करंट ट्रेंड में भी चलता कौन है? जिसमें ग्रोथ होगा वही लाइफ टाइम हाई लगाएगा, जिसका ग्रोथ अभी भी बरकरार है। सही बात है कि नहीं? यस सर। सर ये ग्रोथ जो बोल रहे हैं आप सर, वो सेल्स ग्रोथ, राइट? वो जो 10 year सेल्स ग्रोथ एंड 10 करंट सेल्स ग्रोथ। करंट ईयर ग्रोथ, यस करेक्ट सर, राइट। मार्जिन जो है, ये कॉलम क्यों बनाया है, कोई समझा सकता है मुझे? क्यों मुझे मेरी कंपनियों के मार्जिन देखने हैं? सर जो हाईएस्ट मार्जिन वाली कंपनी होगी उसमें वेटेज ज्यादा करना पड़ेगा। देखो, अगर आपका यहाँ पे -10% आता है, मैंने जितने भी पोर्टफोलियो देखे हैं, बहुत लोग मेरे को पोर्टफोलियो चेक कराने को भेजते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो चेक करो। मेरे को बहुत दुख होता है, अगर मैं यहाँ पे एवरेज करता हूँ तो उनका माइनस में ही आता है। ऐसा क्यों होता है कि उनका पोर्टफोलियो का मार्जिन माइनस में होता है? कोई कंपनी बढ़िया लॉस कर रही होती है इसमें, क्योंकि वो लॉस मेकिंग इकट्ठा कर रहा है, वो एवरेज करते जाते हैं। मैंने बताया ग्रोइंग और अच्छे में वेटेज बताओ, बढ़ाओ। वो लोग कहाँ वेटेज बढ़ा रहे पता है? डिप्लीटिंग वाले में। अरे यार, रूट मोबाइल तो लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, रूट नहीं लेंगे अपने। ये जो लाइफ टाइम लो कौन लगा रहा है, इसको उठाओ जरा, इसको उठाओ। यानी वो उसी को लेते हैं जो घटिया होता है, और वहां पे माल बढ़ाते रहते हैं, तो उनका ये माइनस ही रहता है। अब जिसके मार्जिन माइनस, जिनकी कंपनियों का कोई ग्रोथ नहीं है, वहां उम्मीद मत करो कि पोर्टफोलियो बढ़ेगा। अगर आपकी ये जो बॉटम लाइन एकदम मस्त है, ग्रोथ है, आपकी कंपनियां मार्जिन है, आपकी कंपनियों का टोटल जब आप करते हो एक चीज का, ये जो है ना, ये कॉलम क्या है अरुण भाई? पैट। ये सब चीज आपने मेंटेन कर ली ना, आपका पैट जो है यहाँ पे एकदम तगड़ा होगा। अब अगर आपका प्रॉफिट होता ही नहीं है, बहुत लोगों की पोर्टफोलियो कैसे, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे ना तो -10,000 करोड़। फिर तो वेल्थ जनरेशन नहीं होगा। नहीं होगा। मैं सुजलोन, लामको, ना जेपी एसोसिएट, ना पता नहीं क्या क्या इकट्ठे करते जा रहा हूँ, जो लॉस मेकिंग है। टोटल कर रहा हूँ तो लॉस हो रहा है, और मैं उम्मीद रख के बैठा हूँ कि मैं तो वॉरेन बुफे की थियरी पे चलूंगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। 10 साल और रखो, पैसा नहीं बनेगा। ठीक सर, राइट? कितना सिंपल। आपके पोर्टफोलियो का आंसर आपको आप ही की स्प्रेडशीट देगी।
अगर आपकी ये सारी कंपनी का टोटल करोगे, प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब आप अभी भी कमा रहे हो। गलत बताया क्या मैंने? नहीं सर, समझ गया मैं, समझ गया। राइट, एकदम सिंपल। आज ही एक्सरसाइज करो, एग्जिस्टिंग कंपनियां डाल दो और मुझे बताना कि पीयूष भाई मेरा तो टोटल ऐसा हुआ। ठीक सर। राइट, कर सकते हो ये चीज? यस सर, थोड़ा सा ऊपर जाइए। ओके, रेड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, फ्रंट में, फ्रंट में। ओके, ये रेड 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 अक्षरों में। नहीं, क्यों नहीं मिला? इक्विटी, जहाँ से शेयर्स शुरू होते हैं या डिमांडिंग इंडस्ट्री वाला कॉलम शुरू होता है सर। डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, ये रेड में Okay. ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, ये सर। ओके, कहिए। ये मैं पर ईयर कर सकता हूँ सर, ये जो फर्स्ट लिखा है। हाँ, और जैसे हम लोग 3 हैं तो ये। राइट, तो आप पर ईयर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और आप तीनों भाइयों का 3 लाख रुपया टोटल इन्वेस्ट करने वाले हैं। यस बराबर ना? यस सर। या ओके, तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं मतलब इसको ही आगे बाइफरकेट करके बस चलते जाएं। या बराबर है, इसी को चलते जाओ, इसी को बाइफरकेट करके। ठीक सर। राइट, आप ये उम्मीद रखो कि आप हर साल 3 लाख डाल रहे हो, तो मतलब आपका पोर्टफोलियो आप आने वाले 10 साल में आप कितने इन्वेस्ट करने वाले हो? 30 लाख तो इन्वेस्ट करने वाले हो। यस सर। राइट, तो 30 लाख के हिसाब से टारगेट करो ना कि मेरे को वोल्टास कितने इकट्ठे करने हैं, मेरे को गेल कितने इकट्ठे करने हैं, मेरे को एफएल कितने इकट्ठे करने हैं। मैं आपको 10 साल बाद मिलूंगा, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हजार ये सारे शेयर पड़े होंगे। कितनी बार बोनस दे दिया होगा उन लोगों ने। बराबर, हर एक व्यक्ति, देखो एक सीधा साधा नियम है शेयर बाजार का, आप में से कोई भी व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो का टोटल करे और अगर ग्रोथ 15% का आता है, उनका ईपीएस पॉजिटिव है, तो पैसा बन ही रहा है। ये नहीं हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सर, जब नेचुरल उनका ग्रोथ हो रहा है, कंपनीज का ग्रोथ हो रहा है, तो नेचुरल मेरा भी होगा। करेक्ट, राइट। यहाँ पे एक चीज ऐड करनी है, यहाँ मैं एक ईपीएस लिख देता हूँ अरुण भाई। ठीक सर। ईपीएस, राइट, ये ईपीएस का आप जब टोटल करोगे, आपकी सारी कंपनियों का ईपीएस डन। मान ईयर जो भी लीजिए, रनिंग होगा, या मान लीजिए कुछ ऐसी फिगर बनती है, 10 लाख का आपका निवेश अभी एग्जिस्टिंग है, राइट, और आपका जो ईपीएस है, ईपीएस यस सर, 1 लाख का है, राइट। इसका मतलब आपने 10 लाख डाले हुए, आपको लाख रुपया हर साल का मिलने लगा है, ये आपकी अर्निंग चालू हो गई। यस सर। कितना परसेंटेज मिल रहा है आपको? 10%। अब आप हर साल तो पैसे डालने वाले नहीं हो, ये आपने एक बार इन्वेस्ट किया, 10 लाख तो मैं एक बार डाल चुका हूं, अब हर साल बढ़ेगा क्या? ये 10 लाख कल 20 लाख होने वाला है ईपीएस। ये कब होगा अरुण भाई? अगर आपने ग्रोइंग कंपनियों में पैसा डाला है, am I right or wrong? ग्रोइंग कंपनीज, ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई नहीं आएगी, तो आपकी अर्निंग 20 लाख हो जाएगी। टाइम आएगा जो आपने 10 लाख डाला हुआ है और आपको हर साल कितना मिल रहा है? सेम। कितना यील्ड हुआ? 100%। हमें ये करना है, यही तो पहुंचना है, ये पहुंचना है, और ये मुश्किल नहीं है। कितने ही निवेशकों को मैं मिला हूं भारत भर में जो इतने होशियार नहीं है, पर फिर भी उन्होंने ये पाया है। ठीक सर, राइट। तो अगर आप लोग कैलकुलेटिव चलते हो, बढ़िया करोगे, एक ही केस में पैसा नहीं बनने वाला है। 99% चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा ही, सिर्फ एक ही % केस में नहीं बनेगा। अगर हम अभी भी टिप्स को फॉलो करेंगे, लॉस मेकिंग कंपनियां इकट्ठे करेंगे और खुद की नहीं सुनेंगे। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा
5 years from now, 10 years from now? देखो हमारे प्रॉफिट परिवार में कितने सब पुराने निवेशक हैं, हम अभी भी सबको मिलते हैं और मुझे खुशी होती है। एकदम तगड़ा पोर्टफोलियो सबने बनाया हुआ है। मैं उनको उस समय भी यही चीज कहता था कि जब हम बरसों बाद मिलेंगे, आपका पोर्टफोलियो शेयर बाजार में लॉस करने के लिए बहुत बड़ी महारतें हासिल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा होशियार बनना पड़ता है। बाकी प्रॉफिट करने के लिए बहुत होशियारी नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल नियम पालने पड़ते हैं। आज जो ललित सूर्या ने हमें एक नियम बताया, प्रबल जी का एक नियम हो सकता है, पर ये सारे नियम सिंपल हो जिसे हम इंप्लीमेंट कर सके। अगर कोई भी ऐसी चीज आप कर रहे हो जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो आम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे मत करो। क्या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लेना कॉम्प्लिकेटेड चीज है? नो सर। क्या ग्रोइंग कंपनी लेना कॉम्प्लिकेटेड चीज है? नहीं। तो फिर क्यों मैं ना करूं? राइट फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़िया काम होगा। देखो पूरा हमने आपको पूरा चार्ट दिया है, कब आपका कितना पैसा बनने वाला है, पूरा एस्टिमेशन 100% आपको पता रहे कि मेरा बुक वैल्यू इतना होगा 10 साल पे, मेरा पैसा जो है कितना बनेगा और मुझे क्या चाहिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लिख दो, अपनी वीकनेस को लिख दो। अपनी वीकनेस, मेरी जो स्ट्रेंथ थी मैंने लिखी थी, मेरी वीकनेसेस मैंने लिखी थी। मेरी वीकनेस क्या थी? मुझे एक्सेल सीट नहीं आती थी, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, मैंने लिखा था आई डोंट नो एक्सेल। देखो अगर अपने को अपनी वीकनेस पता होगी तो हम उसे पार कर पाएंगे कि नहीं? नेचुरल है ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अरे यार क्या कर रहा है यार, मलेरिया हो गया तेरे को। तो अब पता चला तभी तो उसकी दवाई लेंगे, तो दवाई ली, ठीक हो गया मलेरिया। वैसे मेरे को पता चला मेरे को एक्सेल नहीं आती है, दवाई ली, ठीक हो गया एक्सेल। कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी, मैं अपनी आज की चीजों को कल पे छोड़ता था। मैंने लिख दिया नो प्रोक्रास्टिनेशन, आज की चीज कल नहीं, कल की चीज आज करने की। राइट। तो अपनी वीकनेस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इट्स गुड। अपने वीकनेसेस पे काम करो, अपने स्ट्रेंथ जो है उसको और बढ़ाते जाओ। improve your strength and work on your weaknesses। क्या सीखना है उसका अभी से बोल लो, ये वीकनेसेस को ध्यान में रखे कि मेरे को क्या सीखना पड़ेगा। What would be my new learning? हर साल में नई चीजें सीखता हूँ। राइट, वी आर ऑन अ पाथ टूवर्ड्स हाई सक्सेस। बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? बोलो आगे मेरे को बताओ। यस सर, कर सकते हैं। राइट, तो इट्स वेरी सिंपल। हमने फंडामेंटल्स की लर्निंग ली, हमने टेक्निकल की लर्निंग ली। आप में से पूरे 4 लोगों ने कई प्रेजेंटेशंस में पार्ट लिया, मतलब आप लोगों ने अपनी चीजें तो प्रेजेंट की ना। देखो ये भी एक लर्निंग है। मेरे को सही बताओ, जब आप प्रेजेंट कर रहे थे, प्रेजेंट करने की वजह से कुछ चीज इंप्रूव हुई होगी, क्योंकि यूं ही जब लिखते हो ना तब हो सकता है कुछ गलती चला लो, पर जब आप पीयूष भाई के साथ डिस्कस कर रहे हो कि ये सेक्टर वो कंपनी, तब समझाने के लिए आपको तो लॉजिक समझ में आने चाहिए। तो जब समझाने की बारी आती है हमें डर लगता है, पर यही डर की वजह से हमारा इंप्रूवमेंट होता है। राइट, तो पूरा हमने जो पूरा एक्सरसाइज जो किया, हमने खुद एक्सरसाइजेस की और हमने प्रेजेंट किया। इन फ्यूचर यू विल बी गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू प्रेजेंट। आज जैसे आप देख रहे हो कई स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम मौका देंगे अलग अलग एक्सरसाइज का। मुझे जैसे जैसे लगेगा आप लोगों को कौन से समय क्या क्या सिखाना चाहिए, हम उस प्रकार से कुछ एक्सरसाइज आपको देंगे, उसमें पार्ट लेते रहिएगा। पूरे 4 महीने दरमियान जो आपने सीखा है, शांति से बैठ के उसका मंथन कीजिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको अपनी डिमांडिंग इंडस्ट्री का जो लिस्ट था ना, उसको थोड़ा प्रॉपर करना पड़ेगा। अभी आपने जो जीडीपी का ग्रोथ डाला था ना, उसमें करंट सिनेरियो आईएमएफ ने जो बोला वो ऐड करना पड़ेगा। आपने
था कंपनी, वो तो लर्निंग था। अब जब आप अपनी कंपनी के करंट रिजल्ट चेक करोगे तो आपको पता चलेगा आपको एग्रेसिव होना है कि शांति से बैठना है, आपके भाव पे शेयर आएगा। ये सब आपको अपडेशन से पता चलेगा। So update your existing Excel sheets, update your company's results. हम लोग इसी प्रकार से मिलते जाएंगे। हेलो 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 यस, कुछ बता रहा हूँ, मुझे खत्म करने दीजिए ये चीज को, राइट? फिर मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। नेक्स्ट वीक पूरा 7 दिन मैं चाहूंगा आप लोग एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट्स जो है आपके पास उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। फिर चाहे वो डिमांडिंग इंडस्ट्री थी, चाहे वो बिहेवियर थी, या चाहे करंट रिजल्ट अपडेट कर रहे थे, या चार्ट थे। सो नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू रीलर्न ऑल दोज थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी, और हम वापस नेक्स्ट थर्सडे को मिलने वाले हैं। यस, क्या क्वेरी थी? यस आपको बोलो सर। यस हेलो। या कहिए सर जैसे ये सारी शीट्स हमारी सितंबर बैच वाली हैं, यस, मान लीजिए ये हमारा खत्म होता है कोर्स, तो उसके बाद में ये एक्सेस हमारे पास रहेगा इसी तरह से? ये परमानेंट आपकी है। ठीक सर, है ना, भाई ये आप ही की है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। यस सर। ये सब लोगों ने खुद ने बनाई हुई है, तो कुछ एरर भी होगी, दूसरों की एरर भी आपके पास आ जाएगी। आप क्या करो, उसको थोड़ा सुधारते जाना, चेक कर लेना कि कहीं किसी ने गलती तो नहीं की है, राइट? ये जो स्प्रेडशीट है ये तो आपकी एक्सेल में हमेशा दिखने ही वाली है। और आप देखो इधर फाइल में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, बराबर? ठीक सर। ऐप पे आपका जो जगह है देखने का वो परमानेंट है, वहां पे आप तो देख ही रहे हो अभी भी, और वो देख पाओगे फ्यूचर में भी, राइट? लेकिन स्प्रेडशीट्स कुछ महीने बाद नहीं होगी ऐप पे, पर आपके कंप्यूटर में होगी। क्योंकि मुझे जब मॉडल पोर्टफोलियो सितंबर बैच खोलना है तो मैं ऐप पे कभी भी नहीं जाता हूं। मैं क्या करता हूं, देखो मैं इधर गूगल में जाता हूं, गूगल में यहाँ पे मैं स्प्रेडशीट में गया, दिख रहा है शीट्स? सर वो मैं ऐसे ही खोलता हूँ, गूगल के थ्रू ही खोलता हूँ। सीधा मैं शीट में गया और यहाँ जाके मैं मेरी स्प्रेडशीट ओपन कर देता हूँ। तो आपने जो भी स्प्रेडशीट पे काम किया है सब स्प्रेडशीट्स इधर बताएगी आपको, राइट? यस सर। या कहिए। अगर किसी की स्प्रेडशीट में कोई गलती होती है तो एट द स्पॉट हमें कोई क्वेरी बनती है, तो उसको कैसे सॉल्व करें सर? मतलब समझा नहीं। जैसे आज ही मैं आईसीआई जनरल इंश्योरेंस का डाटा देख रहा था, तो मुझे 2010 में उसका 170 करोड़ मतलब ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम दिख रहा था, राइट? और जबकि 13,312 दिख रहा था उसमें शीट में, जो कि 10-12 हजार कुछ था, राइट? तो अगर मैं गलती से उसको रेक्टिफाई करता हूँ तो उसकी स्प्रेडशीट खराब हो जाएगी, तो उसको मैं कैसे ओके करूँ? नहीं, उनकी स्प्रेडशीट में मत करो आप। वही तो आप क्या करो, ये पूरा डाउनलोड कर दो, तो पूरा आपके पास आ गया ना। ठीक सर, राइट? फिर आप डाउनलोड करने के बाद कुछ भी करोगे तो किसी का चेंज नहीं होगा, वो आप में ही रहेगा। इसको सारी की सारी जो अपनी सितंबर बैच की डिमांडिंग इंडस्ट्री है सब कुछ है, उनको मैं अपने अलग से डाउनलोड कर लूं? हाँ, अपना जो ड्राइव है ना, ये जो आपने ड्राइव बनाया हुआ है वो अपने ड्राइव में उसको सेव कर दो, सारे एक बार डाउनलोड कर देने के, जीडीपी वाला जो डिमांडिंग इंडस्ट्री है हर चीज अपने एक बार एक बॉक्स में ले लो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मेरे स्टाइल बताता हूँ। एक बार करके दिखा दीजिए किसी एक का। यस, देखो ये मेरा गूगल ड्राइव है, ये ड्राइव दिख रहा है, मैं हर मेरी ये ड्राइव सेव रखता हूँ। जैसे ये ड्राइव मैंने ओपन की, नेट थोड़ा साथ नहीं दे रहा है आज। सर कोई नेक्स्ट क्लास चलनी है तो नेक्स्ट टर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष भाई, जस्ट टू रिमाइंड यू, पीयूष भाई 8:45 हुआ है। ओके, यस, खत्म करते हैं। या देखो ये मेरी ड्राइव खुल गई है, राइट?
अब आपको दिख रहा है ये ड्राइव में मेरे अलग अलग डॉक्यूमेंट, यस सर, वर्कशीट, ट्रैकिंग, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, रिसर्च मटेरियल, तो मेरी हर चीज में इन फाइल में सेव रखता हूँ। ठीक सर, राइट। तो इसी प्रकार से अपना एक फोल्डर बना दो जिसका नाम दे दो रिसर्च, और जितना भी, ये तो खजाना है अरुण भाई, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी प्रेजेंट करके एक्सेल शीट देता है ना, सीधा पहले पढ़ने का नहीं, एक बार उसको उठा के अपने खजाने में डाल दो, फिर जब आपको समय मिलता है उनकी स्प्रेडशीट पूरी पढ़ो। बराबर है? ठीक है जी। तो ये खजाना बढ़ाते जाना, क्योंकि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लोगों के रिसर्च और आते जाएंगे। देखो मैंने आज ही रूट मोबाइल का रिजल्ट प्रेजेंट किया, मैंने सुबह हिंदुस्तान लीवर डाला, तो डेटा तो आपके पास आ गए ना। जैसे ही कोई ऐसा डेटा आए ना, सीधा लेके आपको अपने इस बॉक्स में डाल देने का। ठीक सर। और आपके पास एक बढ़िया खजाना रेडी हो जाएगा। मैं एक बार करके ट्राई करके देखूंगा, अगर कोई दिक्कत आई तो फिर बात करते हैं। यस यस, ओके। सो अगले गुरुवार मिलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा अगले गुरुवार तक आप अपनी स्प्रेडशीट को थोड़ी अच्छी कर लो। राइट? ठीक सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। रात को 9:30 बजे जो सेशन है तरुण वीज और युद्धवीर जी का, उसमें मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।